please write down how to do rank correlation coefficient in case when ranks will get repeated. D square is same, R1 minus R2 column का difference, फिर उसका square, this is same. Now new thing is this part, 1 over 12 into MQ minus M. Okay? This is an adjustment factor, this part, 1 by 12 into MQ minus M is known as adjustment factor या adjustment part. Now what is the meaning of this M? Please write down. M means the number of times a rank gets repeated. M means the number of times a rank gets repeated. Okay, कोई रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, that is called M. बाकी सारा सेम है. M का मतलब यही है 1 over 12 ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करें. Now up to this I have written 2 times, then plus का साइन plus dash या dash up to n times. इसका मतलब है कि जितनी बार हमें रिक्वायर्ड होगी ये फैक्टर उतनी बार इसको ऐड कर देंगे. Sometimes in some questions we need it only 2 times, तो bracket will get closed here only. Sometimes we may need it for 3 times या 4 times. तो जितने टाइम्स हमें चाहिए उतने. स्टैंड अप हर्षी कर जाते हैं. stand up first. We need it 4 times, so we write this method 4 times and then bracket will be closed. This dash dash n just means that we have to extend it as per our requirement. ठीक, और कोई ये फॉर्मूला नहीं है. This is only the extension of the formula depending upon our need. हमें कितनी बार चाहिए उतने टाइम के लिए हमने इसको डैश डैश कर दिया. बिकॉज हमें नहीं पता विद ईच क्वेश्चन दिस नंबर में वेरी. किसी जगह हमें 2 टाइम्स चाहिए, किसी जगह हमें 3 टाइम्स चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, 1 टाइम चाहिए. इसका कैसे लिखा होगा? डिवाइडेड बाय अगेन सेम n मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स, जैसे पहले किया था नंबर ऑफ पेयर्स क्यूब करके माइनस n करके. सो प्लीज राइट द क्वेश्चन. फर्स्टली क्वेश्चन इज calculate rank correlation coefficient between the marks in English and statistics. You may write any 2 subjects. Between marks in English and statistics as indicated by 8 answer sheets, indicated by 8 answer sheets of each of the 2 examiners. 8 answer sheets of each of the 2 examiners. First column is marks in English, or you may write any subject, hardly matters. Marks in English. Second, marks in stats. Please write marks also. So marks are in English, they are 15, 10, 20. 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18. Then marks in statistics, they are 16, 14, 10. 16, 14, 10. Be seated and take care next time. 16, 14, 10, 12, 11, 15. 12, 11, 15, 18 and 12. 18 and 12. Please write values carefully. I repeat. Stats marks 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12. Okay, इतना clear? What is written in the sentence? Marks given by. So first thing should be clear to us that these are not the ranks. Firstly, we need to calculate ranks. पहला तो ये step clear होना चाहिए आपको. ये ranks नहीं है. So ranks के लिए let us start with the same procedure. ये मान लो ये first subject, this is second subject. Now R1 column, R1 column, then R2 column. Okay. Now see the highest value in first column. Ignore second column, just pay attention to the first one. Highest value 28. ठीक है. In front of 28, which rank should be given? First rank 1. In front of 28, write 1. Then 20, second rank. Then 18, third rank. After that 16, fourth rank. After that 15, fifth rank. After that 12, sixth rank. Itna clear? Now what is left? 10 item, 10 marks. 10 marks are getting repeated 2 times. Once it is coming here and here. तो 6 के बाद which rank should be there?
7th रैंक और टोटल हमारे पास 10 मार्क्स जो है दे आर गेटिंग रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स. तो नेक्स्ट 2 रैंक्स कौन से होने चाहिए थे 6 के बाद? 7th एंड 8th रैंक. तो अब नाउ 2 स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेम मार्क्स. सो नाउ वी शुड फाइंड आउट द एवरेज. एवरेज निकालनी पड़ेगी हमें. कौन से किसके रैंक की? 7th और 8th रैंक की एवरेज. सो रफ साइड पे यू प्लीज राइट डाउन 7th रैंक प्लस 8th रैंक डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स है, जैसे मीन निकालते हैं एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 रैंक से तो 2 से डिवाइड कर दिया. अगर 3 रैंक्स हो तो 3 से डिवाइड कर दिया. कितना हो गया ये? 15. 8 प्लस 7 15 बाय 2 7.5. दिस इज इक्वल टू 7.5. नाउ 7.5th रैंक शुड बी गिवन टू बोथ दी स्टूडेंट्स. समझ आ रहा है बेटे? जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं, तो फिर रैंक भी उनका सेम ही होना चाहिए ना. हमें कैसे पता किसी को 7th रैंक कह दे, किसी को 8th पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? आगे पीछे नहीं कर सकते. बोथ ऑफ देम शुड गेट सेम पोजीशन बिकॉज मार्क्स आर सेम. तो सेम निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज फर्स्ट. सो 7.5 वी शुड राइट हियर 7.5 एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ दिस 7.5. ठीक है. अब आप चेक करिए आपकी टोटल ये 8 वैल्यूज हो गई है बिकॉज टोटल वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो ये नंबर्स भी 8 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक. अब इसके नीचे व्हाट टू डू, इसके नीचे आप प्लीज राइट डाउन. नाउ प्लीज सी केयरफुली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम. मीनिंग ऑफ एम हमने लिखा है एम मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए रैंक गेट्स रिपीटेड. So firstly, which rank is getting repeated? 7.5. How many times? 2 times. So we should write here m is equal to 2. 7.5 नहीं लिखना है. रैंक की क्या वैल्यू है वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कितनी बार रिपीट हो रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो m मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड. 2 टाइम्स है तो वी हैव रिटन हियर 2. अगर कोई इसी लाइन में कोई और रैंक भी रिपीट कर रहा होता तो एक बार फिर से m लिख देना था. आगे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें एक ही कॉलम में 2-3 रैंक भी रिपीट हो सकते हैं. तो जितनी बार भी रिपीट हो नथिंग टू वरी, आगे हमने उसको लिख लिया. नाउ लेट अस कम टू दिस इज जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन. तो आई हैव स्टार्टेड विद द इजीएस्ट वन. नाउ सेकंड स्टैट्स कॉलम. अगेन लेट अस स्टार्ट विद मार्क्स रैंक्स. हाईएस्ट वैल्यू 18. सो इन फ्रंट ऑफ 18 राइट फर्स्ट रैंक. देन 18 के बाद है 16 सेकंड रैंक. 15 थर्ड रैंक. 14 फोर्थ रैंक. 14 के बाद है 12. 12 इज कमिंग 2 टाइम्स. ठीक. तो फोर्थ के बाद 2 टाइम्स. अगले 2 रैंक्स कौन से होंगे? 5th एंड 6th रैंक. तो नाउ वी नीड द एवरेज ऑफ 5th एंड 6th रैंक. 5 6 बाय 2. कितना हो गया? 11 बाय 2. 5.5 डिवाइड करके. तो इन फ्रंट ऑफ दिस 12 2 times we will write 5.5. Now in front of 12 5.5 and again here 5.5. ठीक. अच्छा अब 12 के बाद now it is 11. अब ये जो 6th रैंक है it will get deleted, cancelled. ये खत्म हो गया रैंक. तो 6 के बाद नेक्स्ट रैंक कौन सा आता है? 7th है. So in front of this 11 we will write 7th रैंक. 6th रैंक खत्म हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस इज ओवर. अगला रैंक देखना है हमने 7th रैंक. अब 11 के बाद लास्ट वैल्यू इज 10. तो इट विल गेट 8th रैंक. 7th रैंक को 6th रैंक को स्किप कर देना है क्योंकि एवरेज में उसको इंक्लूड कर लिया. सो 6th रैंक विल गेट स्किप्ड. जैसे आपकी क्लास में पोजीशन ही होती है बच्चों की, आपको पता है आपको रिजल्ट में, तो एक रैंक स्किप हो जाता है अगर रिपीटेड हो. तो ऐसे यहाँ पे ये स्किप हो गया. ठीक. नाउ विच रैंक इज गेटिंग रिपीटेड? 5.5. So 5.5 is not important. How many times it is getting repeated? 2 times. So यहाँ पर नीचे m is equal to 2. इतना क्लियर बेटे? ठीक. Now please write the formula again. This factor is to be written only for 2 times. Here you will count कि how many m's are there with you. कितनी बार m आ रहे हैं आपके पास? एक बार ये है 1, एक बार ये है 2. तो फॉर्मूला में ये 2 टाइम्स ही बस फैक्टर लिखते हैं. जितनी बार m आए उतनी टाइम ये पार्ट करते हैं. व्हेन ब्रैकेट क्लोज. सो आई एम डूइंग हियर. यू प्लीज राइट अगेन. अब डैश डैश m नहीं करना है. ठीक. अपने क्वेश्चन में जितनी बार हमारे पास ये m आए उतनी बार ये फैक्टर हमने लिखा डिवाइडेड बाय m³ माइनस n. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. k is equal to 1.
माइनस 6, अच्छा अभी डी तो निकाला ही, प्लीज फाइंड आउट डी कॉलम एंड डी स्क्वायर कॉलम। एक में 2 होता है, एक में 3 होता है। एक में ये 2 होता है, एक में 3 होता है, नो प्रॉब्लम। एक में 2 भर के फिल कर देना, एक में 3 फिल कर देना। आप ये कह रहे हो ना जहाँ पे बाई चांस 2 आया, आप ये कह रहे हो एक में 2 होता है, एक में 3 होता है, तो एक बार जब वैल्यू पुट करनी है तो m में 2 पुट कर देना है, अगली बार 3 पुट कर देना है। आगे करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। नाउ प्लीज फाइंड डी योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ऑन द बोर्ड। सेम प्रोसीजर, r1 minus r2, minus 2.5. You may be wrong also. You please cross check with your own value. I feel difference column, D column. 3, 3.5, minus 6, minus 4.5, minus 1, 4.5, again 3, then last is minus 2.5. Are these values okay? Yes. Okay, then D square column. 9, 12.25, 36, 20.25, then only 1, then 20.25, then only 9, last is 6.25. ठीक है, अब इसका टोटल करिए। फाइंड आउट सिग्मा डी स्क्वायर 114। हर्षिल यू गॉट 60.36, ठीक करिए उसको। 114, प्लीज चेक ऑल। All are getting 114? Fine. Okay, let us put the value. 1 minus 6 into 114, sigma d square 114 plus 1 over 12 into, now एक फर्स्ट m को ले लें, जो भी यहाँ पर वैल्यू है 2 है, तो let us put 2 का क्यूब माइनस 2, ये फर्स्ट, ये m है, इसका काम करता हूँ, ठीक है। प्लस अगेन ये वाला प्लस का साइन 1/12 इंटू, नाउ इन दिस कॉलम ओनली वन टाइम ही m आया है, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। नाउ इन सेकंड कॉलम अगेन एक ही बार m आ रहा है, ओनली वन टाइम, और वैल्यू कितनी है 2, सो लेट अस पुट हियर 2, क्यूब ऑफ 2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय n, n मींस नंबर ऑफ पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, so cube of 8 minus 8. But it would be better if you do it yourself. You are depending upon others, that's why mistakes are there. Now 8 का cube, multiply 3 times 8, 8 into 8 into 8. इसमें से 512 minus 8 कितना हो गया, 504, सारा करके this is coming out to be 504. अच्छा, अब यहाँ ये वाला पार्ट आप चेक करिए, आप अपने रफ काम पे यू कैन डू, आई एम शोइंग हियर, प्लीज लुक हियर बेटे, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। 2 का क्यूब, 3 times 2 is to be multiplied, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 minus 2 6, 6 से this 12 is getting cancelled, 2 6 2s are 12, तो ये सारा पार्ट बन के आ गया 1/2, मतलब 0.5, गेटिंग और नॉट, फिर से बोल रही हूँ, मैंने आंसर सुनिए। 2 का क्यूब, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 minus 2 6, ये वाला पार्ट हो गया 6, 6 से ये 12 को कैंसिल कर दे, 6 2s are 12, तो ये कट के 2 हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 1 minus 6 into 114 प्लस ये पूरा पार्ट 0.5 हो गया, अगेन ये पूरा पार्ट सेम ही है सारा 0.5, 1/2 लिखना है तो भी ओके, मतलब तो एक ही है, 1/2 प्लस 1/2 कर दो तो भी 1 है, 0.5 प्लस 0.5 कर दो तो भी 1 ही है, फर्क नहीं पड़ रहा कोई। सो ये आ गया 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 504, तो ये 0.5 प्लस 0.5 1, 114 प्लस 1 115, 115 को नाउ मल्टीप्लाई करिए विद 6, 619 या 690, okay, it is coming out to be 1 minus 690
डिवाइडेड बाय 504। अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1। ठीक, अब आपकी मर्जी है, योर चॉइस इज देयर, आप इसको कैंसिल करना है 2 के टेबल से, 4 के टेबल से, जिससे भी हो सकता है। अगर कैंसिल करना है फाइन, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यू टेक एलसीएम, उससे आप कर लो एज यू फील इजी एंड कंफर्टेबल, आपकी चॉइस है। आंसर विल बी सेम। हाँ जी, निकालिए कितना, -0.3 -0.3। हाँ जी, सेकेंड डिजिट भी देख लो कितना आता है, 36 माइनस सारा कुछ करके हमारा आंसर इज कमिंग आउट। हाँ जी, हाँ जी, आंसर इज -0.36। आंसर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, क्लियर कि नहीं इतना? ठीक, अच्छा, अब इसका माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मीनिंग है कि these are the answer sheets of 8 students, 2 examiners are checking, तो that means negativity का मतलब है कि both examiners are moving in, their viewpoints are moving in which direction? Opposite direction. मतलब both are not thinking, they are not giving marks in the same manner, अपने अपने तरीके से चेक कर रहे हैं। Both are moving in opposite direction, means their viewpoints are not same. बच्चा एक ही है, 8 बच्चों के ही शीट्स चेक किए हैं, 2 लोगों ने चेक किए हैं। One student may get some different marks in stats, same student may get different marks in English. जरूरी नहीं दोनों में सेम ही मार्क्स हो, ये मतलब है। हो सकता है अगर प्लस में होता तो दैट मीन्स कि देयर इज सिमिलैरिटी इन द चेकिंग ऑफ बोथ द एग्जामिनर्स। माइनस में है तो देयर इज एडवर्सिटी या एडवर्सिटी तो नहीं कहेंगे, इनवर्स अप्रोच, ऑपोजिट अप्रोच, दिस इज ए बेटर वर्ड, ऑपोजिट अप्रोच है। किसी को कोई सब्जेक्ट में ठीक लगेगा, किसी को किसी सब्जेक्ट में ठीक लगेगा। Am I clear up to this? आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें m 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम्स